हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कौन कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करा सकता है। कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए कौन है जो वो सूट फाइल कर सकता है और इसमें क्या क्या एक्सेप्शंस हैं। तो आज हम चलो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। बेसिकली इसमें क्या है कि जो भी पार्टी है कॉन्ट्रैक्ट की वो ही इसको इन्फोर्स कराने के लिए करा सकती है, वही को केस फाइल कर सकती है। उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए वही बोल सकती है। तो जो भी बेसिकली मेन फंडा ये है कि कोई भी स्ट्रेंजर नहीं करवा सकता इन्फोर्स, किसी कंपेल नहीं कर सकता किसी को कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए। लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। हम इसके विद केस लॉज हम इसको अच्छे से स्टडी करते हैं। तो क्या है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अ स्ट्रेंजर कौन होता है? द सच अ पर्सन हु इज़ नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन फाइल अ सूट फॉर दैट कॉन्ट्रैक्ट। क्या वो सूट फाइल कर सकता है? इसका आंसर क्या है? नेगेटिव। अ नेगेटिव आंसर हैज़ बीन प्रोवाइडेड by the Indian Contract Act 1872, which means that no person who is a stranger to the contract can file a suit for the contract. Only the parties to contract can file the suit for the contract. In other words, any agreement under contract law is binding only over the parties, not over other person. This clearly means that on non-performance of the condition of the contract, only the party to the contract can file a suit against each other person have no right to file a suit for it. वही बात कही गई है कि जो पार्टीज हैं वही एक दूसरे पे केस कर सकती हैं, कोई भी थर्ड पर्सन केस नहीं फाइल कर सकता। A privity of contract is required between the parties to the file a suit, as was held in the case of Subgamal Kataria versus State of Rajasthan. ये केस है where the privacy of the contract is not established between the parties, there the right to the file suit shall not exist. One thing is important that the consideration could be paid by any other person. इसमें ये ध्यान देने योग्य बात है कि कंसिडरेशन कोई भी पे कर सकता है, लेकिन अगर कंसिडरेशन कोई थर्ड पर्सन पे कर रहा है तो वो पार्टी नहीं बन सकता है। ठीक है, उसको हम पार्टी नहीं मानेंगे। अ पर्सन डिफरेंट फ्रॉम द promisee, but such a person cannot institute a suit if he is not a party to the contract. This thing is cleared by the definition of the consideration under section 2 subsection D of the contract, which is ये consideration की क्या है definition? When at the desire of the promiser, the promisee or any other person has done or abstained from doing or does or abstain from doing or a promise to do or to abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise. Here the word any other person prove the above statement. Not only this, if any contract is done for the benefit of any person, he is not the party to the contract, then he also cannot file a suit for it. In all the intentions is the privacy of the contract is required for filing a suit. An important case of Dunlop Pneumatic Tire Company versus Selfridges Company. A person bought few tire from the Dunlop Tire Company and sold that to the Selfridges Company. Both agreed that he shall not sell the tire at the rate below the list price, but he sold those tire at the rate below the list price. Company filed a suit against the subseller.
for the breach of contract. Court held that company cannot file a suit against the subseller, Selfridge and Company, because there was no contract between the company and Selfridge Company. Lord Hayden said that only the party to the contract can file a suit. A third person has no right to file a suit. जैसे है इसमें यही बताया गया है कि जो सब सेलर होता है, जैसे ए ने सेल किया बी, ए मैन्युफैक्चर कंपनी है, ए ने सेल किया बी को और बी ने आगे सी को कर दिया, तो इसमें है जो ए और सी का कोई भी डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, इसलिए ए है जो सी के ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते और ना ही सी ए के ऊपर केस फाइल कर सकती है। वही है कि थर्ड पर्सन केस फाइल नहीं कर सकता। अ सिमिलर केस वाज brought before the Privy Council of Kipong Prospecting Limited versus Smith, where the provision of Indian Contract Act was applicable. Privy Council held that through the consideration was paid by third person but he had no right to file a suit. अगर कंसिडरेशन थर्ड पर्सन ने पे की है तो उसके पास राइट नहीं हो जाता केस फाइल करने का। जमन्नाथ वर्सेस राम अवतार and Surj Prasad versus Ramlal. This principle was followed that party to the contract can only file a suit not by the third person. इसमें भी, इस केस में भी यही बोला गया है कि थर्ड पर्सन है जो केस फाइल नहीं कर सकता। इसमें है जो कुछ एक्सेप्शंस हैं, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी नहीं भी है तब भी वो इन्फोर्स करने के लिए कंपेल कर सकता है, केस सूट फाइल कर सकता है। वो एक्सेप्शंस कौन कौन सी हैं, इसमें जो ये 5 एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, बाय बेनिफिशरी ऑफ एनी ट्रस्ट और मैरिज सेटलमेंट। वही जो मैरिज सेटलमेंट होती है उसमें जो भी बेनिफिशरी है वो कंपेल कर सकता है उस और सूट फाइल कर सकता है उस कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स कराने के लिए। ये इसमें कुछ केस हैं, ये देख लेना आप। बेनिफिशरी अंडर फैमिली अरेंजमेंट, कोई भी फैमिली अरेंजमेंट है उसके अंदर, जैसे कोई भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली में कुछ भी वो हुआ है, कोई भी उसमें डिवीज़न हुई है किसी प्रॉपर्टी की या कुछ और, तो ऐसे बोला जाता है कि उसमें जो डिपेंडेंट है उनकी केयर टेक की जाएगी। तो अगर नहीं की जाती तो वो सूट फाइल कर सकते हैं अपने बेनिफिट लेने के लिए। जैसे फीमेल्स होती हैं, फीमेल्स क्या सूट फाइल कर सकती हैं। एक्नॉलेजमेंट, अगर किसी ने एक्नॉलेज किया है, जैसे ए और बी में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है या लोन लिया है ए ने बी से, तो इसमें सी ने एक्नॉलेज किया अगर ये पैसे नहीं देगा तो मैं दूंगा, तो इसलिए इसमें भी थर्ड पर्सन के ऊपर केस फाइल हो सकता है। इंसॉल्वेंट मैटर, कोई भी इंसॉल्वेंट मैटर है, जो इंसॉल्वेंट मैटर होता है जब कोई भी कंपनी या कोई फर्म एजेंसी जो भी है दिवालिया हो जाती है, तो वो सारे अरेंजमेंट्स किसके पास चले जाते हैं, वो गवर्नमेंट के पास चले जाते हैं। गवर्नमेंट उसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ कर देती है। इसमें सबका ध्यान रखा जाता है। गवर्नमेंट रिसीवर अंडर द इंसॉल्वेंसी एक्ट डिस्पोज ऑल द राइट एंड लायबिलिटीज ऑफ पर्सन डिक्लेयर एज इंसॉल्वेंट। इन सच सिचुएशन ही कैन फाइल सूट अगेंस्ट द थर्ड पार्टी दो ही मे बी स्ट्रेंजर टू द कॉन्ट्रैक्ट। वही इसमें थर्ड पार्टी के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है, माइट भी वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट ना हो। इन मैटर ऑफ एजेंसी, द कॉन्ट्रैक्ट मेड थ्रू द एन एजेंट अंडर एजेंसी कैन इन्फोर्स बाय द प्रिंसिपल। वही प्रिंसिपल ने कोई एजेंट अपॉइंट किया गया है, उसने कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किए हैं, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल है उसको हम थर्ड पर्सन नहीं मानेंगे क्योंकि वो थर्ड पर्सन नहीं है। मेन जो है प्रिंसिपल वही है उस कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन जो भी कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन वगैरह चाहे एजेंट के हुए हैं, लेकिन प्रिंसिपल केस फाइल कर सकता है इन्फोर्स कराने के लिए, और प्रिंसिपल के ऊपर भी केस हो सकता है। ये आज का चैप्टर हो गया क्लोज।